गुरुदास महाराज की जय। सैयद श्री गुरु रविदास महाराज जी की कृपा सदका सत्य के विराजमान गुरु श्रीमान जी पावन दरबार गुरु बैठी सिंह साथ सिंह जी आप सब जय गुरुदेव जय गुरुदास महाराज। दिन दिन कट जावे अज दा दाम ना कल पवावे गुरे मुख कदर करो जो टैम अपने आप ते कर लो दास खजान मन नो समझावी टाइम भजन गाई टाइम भजन बानी श्री श्री 108 स्वामी खजान गिरी जी महाराज डेरा स्वामी सिंघारा गिरी जी महाराज शब्द गुरु गद्दी लौटा साहब जबल समा मिला दरवेश नू मंगे नाम सुनाम समा मिला दरवेश नू मंगे नाम सुनाम अपने माता पिता के चौरासी के संबंध गुरु महाराज जी की संगत अपने ग्रह विखे खुदा करके उस मालक को याद करना उसकी याद में वक़्त अपना रखना ये जो मालक की गल समझना और सत्संग के महत्व को समझना ये जो मालक को अपना सब कुछ समझना जो जोड़ा एक कर्म कमाउंदियां ने अपने हर दुख सुख दे विच अपने परमेश्वर को याद करना ये गुरमुख का फर्ज है। गुरमुख अपना धर्म समझता है। इस करके प्यारे गुरमुख जब संगत अखतर होती है उस गुरमुख के दुख विच भी सुख विच भी वो सहाय होंदी है। क्योंकि संगतां जो मालिक के चरणों में अरदासां करदियां हैं चाहे साडा सुख का कारज है वो भी सतगुर ही सहाय होंदे ने।
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮਾਲਕ ਆਪ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਆਓ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਕਤ, ਘੜੀ, ਅਵਸਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਖਜ਼ਾਨਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਸੋ ਨਾਮ। ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਦਰਵੇਸ਼ ਇਹ ਜੋ ਮਾਨਸ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ। ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਰਿਜਕ ਨਾ ਬਣਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਕਾ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਹਮੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 184 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂ ਕੁਰਤੇ ਤੇ ਗਿਰਜ਼ਾ ਡੰਗਰ
ना मुड़ मुड़ फेड़ा पा हरि दे मिलने नूं, तेनू मानस जन्म मिला हरि दे मिलने नूं। ये असल च जीवन जिहड़ा सानूं सो मिलिया है, ये परमात्मा नूं मिलण वास्ते मिलिया है। आखिरी पड़ाव है, उस महल ते पहुंचण दे लई ये आखिरी डंडा है पौड़ी का। जे अगर इस डंडे तो असी फिसल गए, इस डंडे तो असी गिर गए, ध्यान नाल इस डंडे नूं पार नहीं किया, तां प्यारे गुरमुखो असी मुड़ के फिर उस जगह ते चले जावांगे जिथे सानूं पता नहीं मुड़ के कितने जन्म, कितनियां 84, कितने युग, युगां दे युग बीत जाणगे, तेनों मिलनी ना मानस दई। पता नहीं कितनियां युगां दे युग बीत जाणगे, पर तेनों ये अवसर जिहड़ा होर प्राप्त होया जिहदी असीं गौर नहीं करते पे हाँ, फिर तेनों बहुत बड़ा पछतावा होता है। 84 के चक्कर चो निकलना ही ये जो मानस जन्म सी, लेकिन आसी जितने भी सारे आए सी 84 के चक्कर चो निकलने वास्ते, पर 99 के चक्कर में फस गए। 99 के चक्कर च फस गए। तुम पूछोगे 99 का चक्कर की होंदा है? पहली बार सुनिया तुहाडे कोलों। ये 99 का चक्कर की है प्यारे गुरमुखो? आए सी 84 जो निकलने वास्ते और वड़ गए 99 के चक्कर च। महाराज अमरीश भी कथा करा करते सन इस बारे। एक शाहूकार सी, ਉਹਦਾ एक मनीम सी जो ਉਹਦੇ कारोबार का हिसाब किताब रखता सी, और एक ਉਹਦਾ नौकर सी जो ਉਹਦੀ रोज मालिश करा करता सी, ਉਹਦਾ सिर दबाना, ਉਹਦੇ सिर चसना, मुट्ठी चापी करनी, बड़े रूटीन दे विच आंदा है, हसता है, मुस्कुरांदा है, अपने सेठ की मालिश करता है, कभी कभी मस्ती में गुनगुना लेंदा है। जो असीं खुश रहने तो कोई ना कोई गीत अस जो सूँ पसंद आता असीं वो गुनगुनाते रहने, जां कोई भजन साढ़े पसंद आता है असीं वो भजन गाते रहने। जो किसी को पसंद होंदा खुशी में गाता रहता है, दुख में नहीं गाता, खुशी में। सेठ उसकी मुस्कुराहट से बड़ा हैरान है। जो मुट्ठी चापी करता वो मस्ती में अपने गीत गाता है, अपनी मस्ती में रहता, अपना काम भी करी जाता है। ये रोज की क्रिया है उसकी। सेठ सोचता है ये नौकर बंदा, ये तो कुछ है ही नहीं है, इतना गरीब है, जिन मैं कुछ पैसे देना महीने के चरण से गुजारा करता, पर खुश इतना। साढ़े को सारी दुनिया की ताकत है, दौलत है, माया है, सारे दी सारी साड़ी पहुंच है, लेकिन असीं फिर भी दुखी हैं। ये किहदे नाल वचन कर रहा है? अपने मनीम नाल, अपने मनीम नाल वचन कर रहे हैं। मनीम साढ़े को इतनी दौलत है, साढ़े को इतना कुछ है, लेकिन असीं कभी इतना खुशी में झूमे नहीं है। खुशी में साडी तरह तो भी फिक्र लगी रहती है, साडा हर दिन जो फिक्र च गुजरता जाता है, और जिहदे कोल कुछ भी नहीं है ये बड़ा खुश है, बड़ा मजे से जा रहा। मनी आखन लगा सेठ जी लगता है 99 के चक्कर च नहीं गया, ये 99 के चक्कर नहीं गया। कहते हो कितना? कहना तुसीं मैनूं 10,000 रुपया दिओ फिर मैं तुहानूं दस्सां। अच्छा चल ठीक है, ले ला खाते जो मेरे खाते च पा दे, तो ले ला 10,000। मैं देखना चाहता इन्होंने रुपये चक्कर लो जी। अज लैके मनी 10,000 रुपया
उस नौकर के घर चला गया और आखिया भी ए सेठ ने तेनों 10,000 रुपया भेजा, तेनों तेरी जो सेवा करता है तू, बड़ा चिर हो गया सेवा करता, अज सेठ तेरे से खुश हो गया, सेठ ने तेरे वास्ते 10,000 रुपया कर भाई। उसने लिफाफे से पा लिया, उसने लिफाफा रख लिया, बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया कि मेरा सेठ बड़ा चंगा है कि मैं सेवा करता हूँ, आज मैंने 10,000 रुपये भेजा इनाम तौर पर। तो प्यारे गुरमुखो, जेड़ा 5 रुपये दिहाड़ी लैन वाला बंदा अज 10,000 रुपया मिल गया, वो मनीन दे के घर आ गया, आज उस रुपया देख के बड़ा खुश हुआ कि आज मेरे सेठ ने मैंने मेरी सेवा से खुश हो करके मैंने 10,000 रुपये दिया। उसने बड़े प्यार नाल उसने गिनती किया, जो गिनती किया तो 1,000 रुपया घट सी, वो 1,000 रुपया घट सी। नीम के आखरा सी 10,000 रुपया भेजे, पर ये तो 1,000 रुपया घट है, यह गल थोड़ी बनती। जे दिता ही है तो पूरा देना चाहिए ही, कह के 10,000 रुपया तो 1,000 रुपया घट निकले रख लिया। अगले दिन जो सेठ को गया सेवा करने वास्ते, अज वो मुस्कुराहट नहीं है, अज वो चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है, अज वो खुशी भी नहीं है, मन में एक गुस्सा है। देन लगा 10,000 आके 10,000 तो 1,000 घट दिता, बड़ा शाहूकार बनी फिरता, बड़ा शेठ बनी फिरता, मुठी चाटी करता है, सिर भी दबाता है, सेवा करके चला गया। मनीम जी बैठा लाके देख लिया, क्यों सेठ जी क्या क्या कुछ फर्क कुछ बदलाव देखिया तुम? कहते हाँ महसूस तो होया, कहना बस ये चक्कर शुरू हो गया, ध्यान नाल सबर करो तेरे सत्संग में देखना कि अही भी 99 के चक्कर च नहीं। अज आंदा है, रोज सेवा करता है, लेकिन अज वो मुस्कुराहट, वो खिलखिलाहट, वो चेहरे की खुशी जी है, वो जो खुशी में गीत गाता है, भजन गाता है, वो नहीं, तो नहीं। अज हफ्ता बीत गया, अज हफ्ता बीत गया, तो सेठ और मनीम आपस में बात करते हैं, गलबात करते हैं। लो सेठ जी थोड़े 10,000 ने इस 99 के चक्कर से पाता ही है, गल की है? कहना गल तुम आप ही पूछ लो। कल जो अगले दिन आया सेठ की मालिश, सिर दबाना, चसना, सिर तेल लगाना। सेठ पूछ बैठा है, भाई बंदिया वो तेरी तोर हनी, वो तेरी चाल हनी, वो तेरी मुस्कुराहट हनी, वो तेरी खिलखिलाहट हनी, वो तेरी खुशी हनी। भाई अज तो हफ्ता पहला तू बड़ा आनंद च ही, बड़ा खुशी च ही, और बड़ा झूमदा सी तू, और साड़ी जो मतलब मालिश करता है वो बड़ी अच्छी करता रहा, आनंद आंदा रहा है। अज तेरी मालिश में कोई आनंद नहीं है, तेरा सिर दबाना तू सख्त सख्त मारना, पहला पोले पोले मारता सी, तू हौली हौली आस्ता सख्त सख्त मार गुस्से च। मैंने 1,000 रुपया घट दिता, 10,000 दे के आके तेन 1,000 घट दिता है, कहता सेठ जी तुम्हें जे 10,000 करना है पूरे करना है, कोई 1,000 घट क्यों दिता? जे 10,000 देना ही तुम्हें तो 1,000 रुपया तुम घट दिता, 9,000 दिता, 10,000 क्या भी 9,000 दिता।